Radiocity 91.1 से मैं हूँ आरजे पलक and joining us today is another great doctor, Dr. Vivek Allahbadia, जो knee specialist है, knee arthritis specialist हैं, consultant joint replacement surgeon, हिंदुजा हॉस्पिटल जो हमारे खार में, हमारे घर के बाजू में. सर, आपको कैसा लगता है कि आप इतनी कन्वीनियंट लोकेशन में काम करते हो? बहुत बढ़िया लोकेशन है and I really enjoy my work. People are lovely. है ना, बहुत ही सही कन्वीनियंट. बट मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि मैं हिंदुजा का अपॉइंटमेंट लेती हूँ और कितनी बार ऐसे पता चलता है कि मैंने तो माहिम का अपॉइंटमेंट ले लिया और मैं खार में जाके उनसे बोल रही हूँ, अरे सुबह तो अपॉइंटमेंट लिया है. डॉक्टर दोनों ही जगह अच्छे हैं, आप कहीं भी चले जाइए. बट ये ना कि जो बैंड्रा में रहना जो स्टार्ट कर लेते हैं ना, वो अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहते. yes. सर, आप डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स, लाइक पीपल नो यू थ्रू दिस प्रोफेशन, बट I've heard that you are a keen wildlife photographer also. आपका पैशन है, तो प्लीज उसके बारे में जरा बताइए. I've always been fond of nature, wildlife and conservation. I've got friends who are into tiger conservation. Wow. तो हम काफी अक्सर जाते हैं ताड़ोबा. And I go with him and I learned a lot about conservation and tiger photography and trap photographies to do census of tigers, and it's very fascinating thing. I've also been to Masai Mara a couple of times for photography, and it's the most beautiful place on earth. मतलब आप तो full adventurous है. You do deep sea diving also. Like आपने certification करवा लिया अपना? I've got the basic and advanced open water and mixed gas diving certification. I've done more than 250 dives. What? All over the world, Malaysia, Maldives. God. So, but what is your favorite diving location? Because I have not even done one, so I want to do it. So, please advise. So, initially, I think you should start in Andamans because एक तो India में prices reasonable है, water बहुत clear है और rates भी reasonable है, and the instructors are really patient with you, so you'll really enjoy it. Because if you go for the first time, you don't have good instructors or the visibility is not good, then you get scared and you may not like to, pursue diving. आपके favorite spot कौन सा रहा diving वाला in the world? Favorite spot अभी तक रहा है Palau, which is in Micronesia. It's 2 hours drive from Manila towards Guam. Philippines के पास. हाँ. And that is the most beautiful place because there is no industry there. The waters are unspoiled. And the marine life is just exploding. So it's really. हम तो अभी कोविड के टाइम में जब जो प्लान बनाते हैं फुस हो जाता है. कोविड के बाद भी लाइफ है. कोविड और 1-2 साल 1.5 साल परेशान करेगा, उसके बाद क्या होगा? Because now people are talking about this new virus, Omna. उसका भी वैक्सीन आ जाएगा 100 days में, and you just need to take all the precaution like you were taking when the virus first came. And we'll get by. We will get by. Be positive. Yes. Don't be COVID positive, just be positive. So if we talk about your core domain, arthritis होता क्या है to begin with? Arth means joint, itis means inflammation. So joint का inflammation होता है arthritis. So जब joint का surface inflame हो जाता है, joint के cartilage में damage होने लगता है और inflammation हो जाती है, effusion joint में पानी भर जाता है, तो लोगों को दिक्कत होती है डे टू डे एक्टिविटीज करने में, जैसे चलने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, जमीन से बैठ के उठने में. जिम जाते हैं तो जब स्क्वाट्स करते हैं उनको पेन होती है. तो दैट इज आर्थराइटिस इन लेमैन्स टर्म. बहुत अच्छे से समझाया आपने. मेजर टाइप ऑफ आर्थराइटिस कौन से होते हैं? मतलब हमें तो मेन घुटने वाला ही पता है. सी मेजर टाइप ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और इंडियंस को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है नी आर्थराइटिस का. और रेयरली, वेरी रेयरली यू सी इट इन हिप्स. यू सी इट इन द बैक, लोअर बैक, अपर बैक, नेक पेन, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस होता है जो. दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस. एंड देन यू गेट, दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ आर्थराइटिस. जो नी में भी होता है वो भी. ऑल दिस इज एजिंग प्रोसेस. इट्स वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस. एज यू एज द जॉइंट्स. ऑस्टो क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस. यार नाम बड़े मुश्किल होते हैं मेडिकल फील्ड में. ये बात तो सही है. इसलिए आर्थराइटिस बोलिए ना, आप ऑस्टियो स्किप कर दीजिए. अरे हाँ, ऑस्टियो स्किप आर्थराइटिस. सो ये क्या ओल्ड एज से रिलेटेड होता है? बिकॉज़ व्हेनेवर वी हियर द टर्म आर्थराइटिस, द फर्स्ट थिंग वी थिंक इज ओल्ड एज. या फिर इसमें there are some types of arthritis which can occur in young age,
जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ आपके बॉडी सेल्स बनाते हैं जो आपके जॉइंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये तो बच्चों में भी देखा गया है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, प्लस विमेन में ज्यादा होता है, यंग एज में हम देखते हैं 30, 35, 40 में। ये काफी जॉइंट्स डैमेज कर सकता है। इट कैन इन्वॉल्व हिप, नी, सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होता है, हैंड के जॉइंट्स, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, spine, everything it can affect. It can even affect systemic things like eyes, pericardium. हाँ, so but प्रॉब्लम ये है कि लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, so you should not start taking what your neighbor is taking. Your arthritis is different. And please consult a specialist, diagnose what kind of arthritis you have, and if you take treatment early, हर एक टाइप की आर्थराइटिस को बहुत स्लो किया जा सकता है और जॉइंट डैमेज भी बहुत स्लो किया जा सकता है, एंड पेशेंट्स कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। यू डोंट हैव टू फियर आर्थराइटिस। एब्सोल्युटली। लेकिन कोई भी चीज अगर पहले डायग्नोस हो जाए, पता चल जाए, तो इजियर होता है ट्रीट करना। तो कोई ऑलवेज सेल्फ मेडिकेशन। अर्ली साइंस क्या है सर इसके? अर्ली साइंस यही होता है कि सडनली यू स्टार्ट नोटिसिंग कि आप चेयर से उठते हो तो आपको नी में पेन हो रहा है, सीढ़ी से उतरते हो पेन हो रहा है, यू कांट वॉक एज फास्ट एज यू कुड बिफोर, and sometimes if you stand for long you start getting discomfort in the knees. So this is how it starts, and then you must immediately get investigated and start treatment early. Absolutely. और treatment options क्या रहते हैं इसके? Because a lot of people have it, और जितनी studies वगैरह में भी देखा जा रहा है कि बढ़ रहा है अब। See, basically treatment यही होता है कि there are certain things we tell the patients to avoid, like sitting on the floor, sitting cross-legged, using Indian style toilet, avoid stairs as a form of exercise beyond a certain age, you know, otherwise knee jaldi gis jata, because Indians anyway are genetically prone to knee problems. So you have to look after your knees, only then your knees will look after you. Okay. And early treatment is basically icing, short dose of anti-inflammatory medication, physiotherapy, and जो भी जॉइंट में आर्थराइटिस होता है, इफ यू स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड दैट जॉइंट, तो नेचुरली भी पेन और इंस्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो मतलब बिना सर्जरी के भी ट्रीट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, एंड नाउ देयर आर डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वी आर यूजिंग certain drugs like glucosamine which can slow down the arthritis and decrease the need of patients to take painkillers. Oh, that's nice. अगर आप वेट मेंटेन करते हो, एक्सरसाइज अपना नी का करते हो, एंड यू टेक द मेडिसिन्स दैट द डॉक्टर गिव्स, रेगुलर फॉलो अप रखिए अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, यू नो, एंड वी कैन स्लो डाउन द डिजीज ट्रेमेंडसली। सुपर। बट कोई ऐसे साइंस होते हैं कि अब आपको ट्रीटमेंट से सर्जरी करना ही पड़ेगा? इज देयर एनी सिचुएशन where you know that? Yes, अगर तो आर्थराइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग है और आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं असर कर रहा, suppose there is a cartilage tear which is flapping around in your joint, so you need to treat it sometime. कभी कभार बो लेग्स हो जाते हैं आर्थराइटिस के कारण, तो एक कंपार्टमेंट बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, तो यंग पेशेंट्स में you can cut the bone and realign it. In older patients you can also do a half compartment knee replacement. Secondly, other things could be sports injuries which are, if not treated properly, like किसी को अगर anterior cruciate ligament फट गया और उसने उसका सर्जरी नहीं कराया, तो फिर abnormal movement शुरू हो जाती है नी में, and they are predisposed to arthritis at a much earlier age. Absolutely. So I personally feel अगर आपको आर्थराइटिस के सिम्टम है तो सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए और ट्रीटमेंट डिले नहीं करिए, क्योंकि there are some things which can be slowed down tremendously if we start treatment early. Wow. No, absolutely, you know, early detection is the key. लेकिन अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो नी सर्जरी में और आर्थराइटिस की फील्ड में क्या क्या नया नया डेवलपमेंट हुआ है कि अब पेशेंट्स को उतना डरने की जरूरत नहीं है? टेक्नोलॉजी के अलावा बहुत एडवांसेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, लेकिन आजकल नी रिप्लेसमेंट्स आर नॉट एज पेनफुल एज दे वर अ फ्यू इयर्स बैक। पेशेंट को जब सर्जरी खत्म करते हैं तो हमारे एनेस्थेटिस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन ला के कैथेटर्स डालते हैं नी के ऊपर, नर्व के ऊपर, और वहां हम पंप लगा देते हैं, टिप्पा टिप्पा ड्रॉप पेन किलर का नर्व पे चलता है, इसे एडक्टर कैनाल करते हैं। और बेस्ट पार्ट है, ये सिर्फ सेंसेशन ले लेता है, आपका मसल पावर वीक नहीं करता।
तो पेशेंट 12-14 घंटे में चलते हैं विदाउट पेन, ये हम 3 दिन तक मेंटेन करते हैं। अगर पेशेंट को पहले 3 दिन पेन नहीं हुआ तो फिर बाद में पेन नहीं होता और 2-3 हफ्ते में रिकवरी पूरी हो जाती है नी रिप्लेसमेंट की। वाओ वाओ। Secondly, अंकल आंटी भी आए थे यहाँ नी रिप्लेसमेंट के लिए, वो तो अगले दिन फ्लाइट लेके वापस भी चले गए। मैंने कहा बताओ कैसे नी रिप्लेसमेंट, जो पहले लोग डरते थे, नाउ इट्स नॉट दैट स्कैरी आई गेस। yeah, so it's not that painful. In the right hands, you can get good results, early rehab. टेक्नोलॉजी भी बहुत हेल्प होती है। इंडियंस में ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपीनिया ज्यादा है, तो कई लोगों की टांगे भी बो हो जाती है बिसाइड्स द जॉइंट। तो वी हैव टेक्निक लाइक नेविगेशन, पेशेंट स्पेसिफिक जिग्स, रोबोटिक सर्जरी अभी आ गया है, जिसमें हम कई सर्जरी की मशीन्स में हम सीटी स्कैन पेशेंट का करके लोड कर देते हैं, उस पर पूरी प्लानिंग करते हैं सर्जरी की, और फिर रोबोट हमें हेल्प करता है कट करने को, ताकि आपकी अलाइनमेंट प्री डिजीज स्टेटस पे आ जाए, बिल्कुल नॉर्मल 0 to 3 डिग्रीज के अंदर। वाओ, रोबोटिक सर्जरी करते हुए डू यू फील लाइक सम सुपर हीरो? No, you don't feel like superhero. You have to be extra careful. These are emerging technologies, so you are totally concentrated. You cannot afford to make mistakes. You are dealing with live patient. So yeah, after the surgery is over, you feel really ecstatic that you've helped one more human being get on their feet. How sweet, how sweet. लेकिन पेशेंट्स अपनी जिंदगी नॉर्मल जीते हैं नी सर्जरी के बाद? See, knee surgery के बाद patients can walk long distances. They can walk, they can climb stairs. They can play light sports like golf, double tennis. But impact हम allow नहीं करते, जैसे running हो गया, jumping, ये सब हम allow नहीं करते. These can be detrimental for artificial joints. High flexion knees में तो patient नीचे भी बैठ सकते हैं जमीन पे चौंकड़ी मार के. But we don't advise that they do it every day. Once in a while पूजा पाठ के लिए कर लिया, बट रोज अगर नीचे बैठेंगे उठेंगे तो भी जॉइंट पे असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। जाते हुए आप कोई चीज बोलना चाहते हो? हम नॉर्मली भी अपने घुटनों का ख्याल कैसे रखें कि हमें फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े और हमारे जॉइंट्स और हड्डियां बरकरार रहें? एनी मैसेज यू वांट टू गिव? I want to give a very strong message. The young girls and boys who are over exercising in the gyms around the age of 30-40, if they get knee pain, please consult your orthopedic surgeon. And the older patients also, if you get knee pain, start treatment early. We can slow down the disease tremendously. If you start treatment early, we can postpone your surgery by many years. Please listen to डॉक्टर हियर। बट जो कहते हैं ऐसे ट्रेडमिल से घुटने वीक हो जाते हैं, साइकिलिंग से, इज देयर एनी ट्रूथ टू दिस? ट्रेडमिल से घुटने वीक नहीं होते, लेकिन ट्रेडमिल गिव्स एन अपथ्रस्ट टू द नी जॉइंट. सो इफ यू हैव नी पेन, then we don't advise that you use a treadmill. Cycling is good. आपको सिर्फ साइकिल की सीट ऊपर करनी है ताकि नी ज्यादा बेंड नहीं हो, and you don't get pain. It strengthens your knees. And to people who can't cycle on the road, you get reclining cycles in the gym where you're sitting in a chair, आपके पैर आगे हैं. So that's a very good exercise. You can increase the resistance gradually and strengthen your knees. Absolutely. And for jumping, is there any technique where we jump and our joint, मतलब हमने joints पे ज्यादा बोझ ना बने? जंपिंग तो नॉर्मल यंग एज में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं देती. इवन 40-50 में लोग स्किपिंग करते हैं, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग नी पेन, देन यू नीड टू ऑल्टर योर एक्सरसाइजेस. Then you need to be careful. Thank you so much once again हमारे साथ जुड़ने के लिए. It was lovely speaking to you. Most welcome. My pleasure. Thank you so much.